Good evening, everyone. Am I audible? हाँ जी। Thank you, sister. Let us start our today's session with a short meditation. Let me look at myself. Focus between the center of your forehead and see. Visualize a shining star shining in the center of the forehead. This is the real I, the realization. I, the thinker, the doer. I, the life element in this body. I am an eternal, pure, powerful soul. In the present moment, I am complete. I have all the resources needed in the present moment. I am living my life fully. I am grateful for everything in my life. I am a satisfied, contented being. I focus on the present moment and give my best in everything. I utilize this time completely. I can do whatever I want to, and I decide that I honor my time, be punctual in everything I do. My every karma is perfect, pure, and full of God's love, power, and blessings. I am in the highest vibration, and I think only beautiful, positive, and elevated thoughts. All my dreams follow my elevated thoughts. Everything is perfect, whole, and Om Shanti. Let me share the screen. It's visible to all. No, the screen is not visible. Yeah, it's visible now. Thank you, sister. So today we will start from the past cannot survive in your presence.
हमारी प्रेजेंस में जो पास्ट है वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। अभी देखिए यहाँ पे सीकर क्या बोल रहा है। You mentioned that thinking or talking about the past unnecessarily is one of the ways in which we avoid the present. But apart from the past that we remember and perhaps identify with, isn't there another level of past within us that is much more deep seated? I am talking about the unconscious past that conditions our lives, especially through early childhood experiences, perhaps even past life experiences. सीकर पूछ रहे नोयर से कि आपने मेंशन किया था कि जब हम सोचते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे में बातें करते हैं अननेसेसरीली, तो उससे हम लोग प्रेजेंट अपने प्रेजेंट मोमेंट को अवॉइड करते हैं। अभी सीकर ये बोल रहे हैं कि जो हम पास्ट रिमेम्बर करते हैं, जिसके साथ हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके हम प्रेजेंट में जिस हिसाब से खुद को जज करते हैं, उस पास्ट के अलावा एक डीपर लेवल में और एक पास्ट भी है जो हमारा अनकॉन्शियस पास्ट होता है, जिससे हमारी लाइफ कंडीशन होती है, जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस होते हैं, और जो हमारी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस बर्थ से पहले जो हमने लाइफ ली है उनके एक्सपीरियंस, या वो पास्ट नहीं है। एंड देन देयर इज our cultural conditioning, which has to do with where we live geographically and the historical time period in which we live. All these things determine how we see the world, how we react, what we think, what kind of relationships we have, how we live our lives. उसके अलावा हमारी कल्चरल कंडीशनिंग भी होती है, जो हम सब अलग अलग कल्चर से आते हैं जब, तो वो भी एक कंडीशनिंग होती है जो डिसाइड करती है कि जियोग्राफिकली हम किस पार्ट में रहते हैं, कैसे क्लाइमेट में, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हिस्टोरिकल टाइम पे हमने किस टाइम पर जन्म लिया था, उस टाइम पे जो थिंकिंग होती है, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इनके हिसाब से ही हम अपनी दुनिया को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, इस हिसाब से ही हम रिएक्ट करते हैं, हम सोचते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी इनके बेसिस पे होते हैं, और किस तरह से हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं। हाउ कुड वी एवर बिकम कॉन्शियस ऑफ ऑल दैट और गेट rid of it? How long would that raise? And even if we did, what would there be left? हमें सीकर बोल रहे हैं कि हम कैसे कॉन्शियस हो जाएं इन सारी चीजों से, और कैसे हम इस चीजों से छुटकारा पा लो, और कितना हमें टाइम लेना पड़ेगा इन चीजों से रेस करने के लिए खुद को, और अगर हमने रेस कर भी लिया तो हमें क्या बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। व्हाट इज लेफ्ट व्हेन इल्यूजन एंड्स? क्या बच जाता है जब हमारा इल्यूशन खत्म होता है? There is no need to investigate the unconscious past in you except as it manifests at this moment as a thought, an emotion, a desire, reaction, an external event that happens to you. तो यहाँ पे नोअर बोल रहे हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस पास्ट है हमारे अंदर में, उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, except as it manifests at this moment as a thought, an emotion, a desire, a reaction, or an external event that happens to you. तो अभी अनकॉन्शियस पास्ट को हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, पर उस अनकॉन्शियस पास्ट बेसिस पर जो हम प्रेजेंट मोमेंट में जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी डिजायर्स हो रही है, किस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इवेंट जो हमारे साथ हो रहा है, तो वो जो प्रेजेंट में जो अनकॉन्शियस पास्ट का इन्फ्लुएंस है, बस उतना ही पार्ट हमें इन्वेस्टिगेट करना है। Whatever you need to know about the unconscious past in you, the challenges of the present will bring it out. अभी ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो हमें जानने की जरूरत है अनकॉन्शियस पास्ट के बारे में, वो जो प्रेजेंट मोमेंट में हमारे चैलेंजेस आ जाते हैं ना, उनके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चीज जानने की जरूरत है। इफ यू delve into the past, it will become a bottomless pit. There is always more.
ऑथर बता रहे हैं कि अगर हम पास्ट के बारे में ही ज्यादा सोचेंगे ना, तो फिर वो एक बॉटमलेस पिट है, उसका कोई अंत ही नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ और ज्यादा हमें मिलते रहेगा. You may think that we need more time to understand the past or become free of it. In other words, that the future will eventually free you of the past. अगर हम पास्ट को बार बार इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमें ऐसे लगेगा कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और उससे फ्री रहने के लिए. मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में भी हम पास्ट के ही बारे में सोचते रहेंगे और हम ऐसा सोचते रहेंगे कि फ्यूचर में तो हम फ्री हो जाएंगे, थोड़ा और टाइम दे देते हैं. दिस इज अ डिल्यूशन, ये डिल्यूशन है. ओनली द प्रेजेंट कैन फ्री यू ऑफ द पास्ट. तो हमें पास्ट से कौन फ्री कर सकता है? ओनली द प्रेजेंट कैन फ्री अस ऑफ द पास्ट. More time cannot free you of time. Access the power of now. That is the key. तो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ना. ओनली द पास्ट कैन फ्री यू, ओनली द प्रेजेंट कैन फ्री ऑफ द पास्ट. मोर टाइम कैन नॉट फ्री यू ऑफ टाइम. अगर हमें और टाइम मिल जाएगा ना, तो हमें वो टाइम से फ्री नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सोच के रखा था कि और टाइम मिलेगा हमें, तो हम पास्ट से फ्री हो पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है. मोर टाइम कैन नॉट फ्री अस ऑफ टाइम. एक्सेस द पावर ऑफ नाउ. तो क्या एक्सेस करना है? पावर ऑफ नाउ. दैट इज द की. हमें नाउ में ही सब कुछ करना है. व्हाट इज द पावर ऑफ नाउ? द पावर ऑफ नाउ क्या है? None other than the power of your presence, your consciousness, liberated from what forms. तो पावर ऑफ नाउ और कुछ नहीं है. पावर ऑफ नाउ हमारी खुद की प्रेजेंस है, हमारी कॉन्शियसनेस है. हमारी कॉन्शियसनेस जो कि अभी हमारे थॉट फॉर्म से लिबरेट हो गई है, आजाद हो गई है. तो डील विद द पास्ट ऑन द लेवल ऑफ द प्रेजेंट. पास्ट को हमें कैसे डील करना है? लेवल ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में हमें डील करना है. The more attention you give to the past, the more you energize it, and the more likely you are to make self out of it. जितना हम अटेंशन देंगे ना पास्ट को, जितना हम उसको एनर्जाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपनी सेल्फ को, मतलब हम अपने सेल्फ को पास्ट के हिसाब से बनाएंगे. डोंट मिसअंडरस्टैंड. अटेंशन इज एसेंशियल. इसको मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है. अटेंशन जरूरी है, बट नॉट टू द पास्ट एज पास्ट. गिव अटेंशन टू द प्रेजेंट. अटेंशन हमारा जरूरी है, पर पास्ट को पास्ट की तरह अटेंशन नहीं देना है. अटेंशन प्रेजेंट को देना है. गिव अटेंशन टू योर बिहेवियर, टू योर रिएक्शंस, मूड्स, थॉट्स, इमोशंस, fears एंड desires as they occur in the present. तो हमें किसको अटेंशन देना है? प्रेजेंट मोमेंट में हमने कैसे बिहेव किया, कैसे हमने रिएक्ट किया, हमारे मूड्स, हमारे थॉट्स, इमोशंस, जो फियर्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, जो ऑकर करते हैं हमारे प्रेजेंट मोमेंट में, उसको अटेंशन. There's the past in you. Past है हमारे अंदर. If you can be present enough to watch all those things, not critically or analytically, but non-judgmentally. अगर हमें प्रेजेंट में वॉच करनी है सारी चीजों को, तो बहुत जरूरी है ये लाइन्स. देखिए, क्रिटिकल नहीं होना है. अपने बारे में ऐसे नहीं सोचना है कि हमने ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसे कैसे कर दिया. तो खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना, एनालाइज नहीं करना, और नॉन जजमेंटल रहना है. खुद को जज भी नहीं करना है कि ये तो गलत किया, ये सब नहीं. देन यू आर डीलिंग विद द पास्ट एंड डिसॉल्विंग इट थ्रू द पावर ऑफ योर प्रेजेंस. अगर हम ऐसे करेंगे ना, नॉन क्रिटिकल रहेंगे, नॉन जजमेंटल रहेंगे अपने आप को वॉच करने के टाइम पर, तभी हम डील कर सकते हैं पास्ट को और उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं. पावर ऑफ आवर प्रेजेंस. You cannot find yourself by going into the past. You find yourself by coming into the present. हम अपने आप पास्ट में जाके नहीं खोज सकते. हम अपने आप को कैसे खोज सकते हैं? प्रेजेंट में खोज सकते हैं. Isn't it helpful to understand the past and to understand why we do certain things, react in certain ways, or why we unconsciously create our particular kind of drama patterns in relationships and so on? क्या ये हेल्पफुल नहीं होता कि हम पास्ट को जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमें समझ आती है कि हम कुछ चीजें क्यों करते हैं, मतलब हमारा बिहेवियर, कुछ हमारे रिएक्शंस, वो सब क्यों आ रहे हैं, वो हमें पास्ट को अंडरस्टैंड करने से पता चलेगा. ऐसा सीकर पूछ रहे हैं
कि जो हम रिएक्ट कर देते हैं, क्यों हम अनकॉन्शियसली एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं, पैटर्न्स इन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, इस तरह से चीजें क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें पास्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प नहीं होगी। ये सीकर का क्वेश्चन है, अभी ऑथर बता रहे हैं, एज यू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ योर प्रेजेंट रियलिटी, you may suddenly get certain insight as to why your conditioning functions in those particular ways. For example, why your relationships follow certain patterns and you may remember things that happened in the past or see them more clearly. That is fine and can be helpful, but it is not essential. और फिर बता रहे हैं, जब हम और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने प्रेजेंट रियलिटी में, तो हमें सडनली बहुत सारे इंसाइट्स आने लग जाते हैं कि हमारी कंडीशनिंग फंक्शन इन पर्टिकुलर वेज में क्यों है। जो हमारी कंडीशनिंग है, जैसे कि कुछ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स वो सर्टेन एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों है, और क्यों हम चीज़ों को रिमेम्बर करते हैं जो कि पास्ट में हुई थी और उनको बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तो ये ठीक है और ये हेल्पफुल भी हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कहना है। व्हाट इज एसेंशियल इज योर कॉन्शियस प्रेजेंस। एसेंशियल क्या है कि हमारी जो कॉन्शियस प्रेजेंस है वही एसेंशियल है। दैट डिजॉल्व्स द पास्ट, और वो हमारे पास्ट को डिजॉल्व कर देगी, खत्म कर देगी। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंट। जो हमारी कॉन्शियस प्रेजेंस है वही ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंट है। सो डोंट सीक टू अंडरस्टैंड द पास्ट बट बी एज प्रेजेंट एज यू कैन। तो हमें पास्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रेजेंट होने की जरूरत है। जितना हम प्रेजेंट हो सकते हैं उतना ज्यादा प्रेजेंट रहने की जरूरत है। द पास्ट कैन नॉट सर्वाइव इन योर प्रेजेंस, इट कैन ओनली सर्वाइव इन योर एब्सेंस। तो पास्ट जो है वो हमारी प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकता, पास्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे एब्सेंस में सर्वाइव कर सकता है। ये प्रेजेंस एब्सेंस किसकी बात हो रही है कि जब हम कॉन्शियस रहते हैं, जब हम प्रेजेंट रहते हैं, तो उस टाइम पास्ट सर्वाइव नहीं होता। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं तब जो हमारी एब्सेंस हो गई है कॉन्शियसनेस की, तभी पास्ट सर्वाइव करते हैं। With this, we have completed chapter 4. Now we are to chapter 5. The state of presence. It's not what you think it is. तो हमने जो प्रेजेंस की इतनी बात करी उसके स्टेट अभी हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। इट इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। जो हमने सोचा है ना वैसा नहीं है। प्रेजेंस के बारे में अभी डिटेल्ड में एनालाइज करेंगे। You keep talking about the state of presence as the key. I think I understand it intellectually, but I don't know if I have ever truly experienced it. I wonder, is it what I think it is, or is it something entirely different? तो जो सीकर है वो कह रहे हैं कि आप तो इतनी बार बात करते रहते हैं कि जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस है वही की है, स्टेट ऑफ प्रेजेंस में हमारे पास नहीं सर्वाइव रह सकता। तो अभी सीकर कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो समझ चुके हैं इंटेलेक्चुअली, मतलब माइंड के लेवल पे वो समझ गए हैं कि उन्होंने क्या बोला, पर उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो प्रेजेंस वाली स्टेट है ये इन्होंने खुद से एक्सपीरियंस करी है इन्होंने। और ये इस बात को भी लेकर कंफ्यूज है कि इन्होंने जो सोचा है प्रेजेंस के बारे में क्या वही सच है या फिर प्रेजेंस एकदम कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट है जो इन्होंने सोचा है उस। तो अभी ये नोर से पूछ रहे हैं, नोर आंसर देंगे। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। यू कांट थिंक अबाउट प्रेजेंस एंड द माइंड कांट अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस इज बीइंग प्रेजेंट। तो जो हमारी जो प्रेजेंस है ना, वो इट इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। जो हमने सोचा है वो नहीं। यू कांट थिंक अबाउट प्रेजेंस क्योंकि हम प्रेजेंस के बारे में सोच ही नहीं सकते। द माइंड कांट अंडरस्टैंड इट। माइंड तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता प्रेजेंस के बारे में। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस इज बीइंग प्रेजेंट। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस इज बीइंग प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करते हैं उसका मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट में हैं, हम प्रेजेंट हैं, तो वो हो जाता है प्रेजेंस। ट्राई अ लिटिल एक्सपेरिमेंट। तो ऑथर अभी हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। क्लोज योर आईज एंड से टू योरसेल्फ। आप लोग अपनी आईज क्लोज करके खुद से मतलब ये चीज सुनिए। क्लोज योर आईज एंड से टू योरसेल्फ, आई वंडर व्हाट माय नेक्स्ट थॉट इज गोइंग टू बी। फिर से बोलेंगे, आई वंडर
what my next thought is going to be. Then become very alert and wait for the next thought. अभी alert हो जाइए और सोचिए next thought क्या होने वाली. Be like a cat watching a mouse hole. आपको एक कैट की तरह बन जाना है जो कि माउस होल पर बहुत ध्यान से वॉच कर रही है. कैट क्या करती है, माउस होल से जैसे ही माउस आएगा फिर उसको पकड़ लेगी ना, तो वैसे ही हमें कैट की तरह वॉच करना है कि नेक्स्ट थॉट क्या आने वाला है हमारी माइंड से. व्हाट थॉट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द माउस होल, ट्राई इट नाउ. तो क्या थॉट आने वाला है माउस होल से, ट्राई इट नाउ. ये कर लिया एक्सपेरिमेंट. वेल, तो अभी सीकर बोला आई हैड टू वेट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बिफोर अ थॉट केम इन. तो यहाँ पे सीकर कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत वेट करना पड़ा नेक्स्ट थॉट आने से पहले. और ये सेम चीज मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ में भी हुई होगी कि उसके बाद में अचानक से थॉट ही नहीं आया कुछ. एग्जैक्टली अभी ऑथर बता रहे एज लॉन्ग एज यू आर इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस प्रेजेंस यू आर फ्री ऑफ थॉट. तो जब हम इंटेंस प्रेजेंस वाले स्टेट में होते हैं तो हम फ्री ऑफ थॉट होते हैं. इसीलिए तो ऑथर कह रहे थे ना कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते इसको माइंड के लेवल पर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम प्रेजेंट ही हैं. तो यू आर स्टिल येट हाईली अलर्ट. तो हम स्टिल हो जाते हैं, उस टाइम स्टेबल हो जाता है, कोई थॉट नहीं आता, लेकिन हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं. जैसे एक कैट अलर्ट होती है कि माउस कैसे निकले बाहर बस उसे पकड़ ले, वैसे ही अभी हम भी अलर्ट हो गए थे कि कैसे एक थॉट आए बस हम जान गए नेक्स्ट थॉट क्या आने वाला था. द इंस्टेंट योर कॉन्शियस अटेंशन sinks below a certain level thought rushes in. जब हमारा इंस्टेंट होता है ना अटेंशन, कॉन्शियस अटेंशन, वो जब एक सर्टेन लेवल के बिलो चले जाता है तब थॉट आता है. द मेंटल नॉइज रिटर्न्स, द स्टिलनेस इज लॉस्ट, यू आर बैक इन टाइम. जो मेंटल नॉइज है वो उसके बाद वापस आने लग जाती है, स्टिलनेस खत्म हो जाती है और फिर हम टाइम में आ जाते हैं. मतलब जब हमारा कॉन्शियस अटेंशन एक सर्टेन लेवल के नीचे चला जाता है तभी हमें थॉट्स आते हैं और मेंटल नॉइज एक क्रिएट हो जाता है, हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स फिर आने लग जाता है, फिर वो स्टिलनेस खत्म हो जाती है. To test their degree of presence, some Zen masters have been known to creep up on their students from behind and suddenly hit them with a stick. तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि कुछ मास्टर्स क्या करते थे, डिग्री ऑफ प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए वो अपने स्टूडेंट्स के पीछे से ऐसे आते थे और अचानक से एक स्टिक से उनको मारते थे. Quite a shock if the student had been fully present and in a state of alertness, if he had kept his loin girded and his lamp burning, which is one of the analogies that Jesus uses for presence. He would have noticed the master coming up from behind and stopped him or stepped aside. But if he were hit, that would mean he was immersed in thought, which is to say absent, unconscious. तो अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए जेन मास्टर्स अचानक से आते थे उनके पीछे से और अचानक से आकर के उसको स्टिक से मारते थे. तो अगर वो लैम्प जो बर्न कर रही है, स्टूडेंट एकदम हाईली अलर्ट है, तो फिर वो नोटिस कर लेता था कि मास्टर आ रहे हैं और फिर वो अपने मास्टर को रोक लेता था या फिर हट जाता था. लेकिन अगर स्टूडेंट को लग जाती थी ना, उसको मास्टर हिट कर देते थे, उसका मतलब था कि वो थॉट में इमर्स हो गए हैं स्टूडेंट और वो एब्सेंट है, अनकॉन्शियस है. To stay present in everyday life, it helps to be deeply rooted within yourself. तो एवरीडे लाइफ में हमें प्रेजेंट रहने के लिए हमें अपने खुद के साथ में डीपली रूटेड होना होगा. अदरवाइज द माइंड व्हिच हैज इनक्रेडिबल मोमेंटम will drag you along like a wild river. तो बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे प्रेजेंट नहीं रहेंगे ना, तो जो माइंड है जिसके पास में इनक्रेडिबल मोमेंटम है, बहुत स्पीड से हमारे अंदर थॉट्स आते रहते हैं ना एक के बाद एक, तो वो हमें एक रिवर की तरह, एक वाइल्ड रिवर की तरह अपने साथ ले जाएगा. व्हाट डू मीन बाय रूटेड विद इन योरसेल्फ? तो ये रूटेड विद इन योरसेल्फ का क्या मीनिंग होगा, सीकर पूछ रहे. इट मीन्स टू इनहैबिट योर बॉडी फुल्ली,
You always have some of your attention in the inner energy field of your body. Right within yourself का मतलब होता है कि जब हम अपनी बॉडी में फुल्ली इनहैबिटेड रहते हैं और हमारा जो अटेंशन होता है वो हमारे खुद की बॉडी की जो एनर्जी फील्ड है ना उसके ऊपर हमारा अटेंशन रहता है फील द बॉडी फ्रॉम विद इन सो टू स्पीक। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे अपनी बॉडी को अंदर से फील करना है सो टू स्पीक। Body awareness keeps you present. It anchors you in the now. See chapter 6. तो ये वाला हम अभी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 में थोड़ा और डिटेल वे में होगा। तो जब हम बॉडी को विद इन फील करते हैं, जब अवेयरनेस होती है हमारी बॉडी में, तो हम प्रेजेंट में रहते हैं और ये हमें नाउ में रखता है। The esoteric meaning of waiting. In a sense, the state of presence could be compared to waiting. तो जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस है हमारी जो प्रेजेंस का स्टेट है वो वेटिंग से भी कंपेयर हम कर सकते हैं। वेटिंग से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट करा था ना कि आई वंडर व्हाट माय नेक्स्ट थॉट इज गोइंग टू बी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम हाईली अलर्ट और हम वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट थॉट कब आएगा। जीसस यूज्ड द एनालॉजी ऑफ वेटिंग इन सम ऑफ हिज पैराबल्स। तो जीसस भी इसको अपने कुछ पैराबल्स में भी कुछ स्टोरीज में इसको यूज करते थे। दिस इज नॉट द यूजुअल बोर्ड और रेस्टलेस काइंड ऑफ वेटिंग, दैट इज द डिनायल ऑफ द प्रेजेंट एंड दैट आई स्पोक अबाउट ऑलरेडी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर, ये जो वेटिंग होती है ना, यूजुअली हम वेटिंग को कैसे लेते हैं कि बोर हो रहे हैं, एकदम रेस्टलेस है, किसी चीज के लिए हम वेट कर रहे हैं, बस वो हो जाए या फिर किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो आ जाए। तो ये उस काइंड की वेटिंग नहीं है जिसके बारे में ऑथर अभी हमसे बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ प्रेजेंस जो हमारी कंपेयर हो जाती है वेटिंग में। It is not a waiting in which your attention is focused on some point in the future and the present is perceived as an undesirable obstacle that prevents you from having what you have. तो ये जो वेटिंग है स्टेट ऑफ प्रेजेंस वाली, ये वैसी वेटिंग नहीं है कि जिसमें हमारा अटेंशन किसी एक पॉइंट के ऊपर है जो फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है उसको लेकर के हम वेट कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट में अभी जो हम वेट कर रहे हैं उसको हम परसीव करते हैं जैसे ये अनडिजायरेबल ऑब्स्टेकल है, बस ये जल्दी से पास हो जाए और फिर हमें वो चीज मिल जाए। दिस इज क्वालिटेटिव डिफरेंट काइंड ऑफ वेटिंग, टोटल अलर्टनेस। तो जो वेटिंग है ना वो एक क्वालिटेटिवली डिफरेंट काइंड ऑफ वेटिंग है जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस वाली वेटिंग है, और इसमें हमें टोटली अलर्ट रहना होगा। Something could happen at any moment, and if you are not absolutely awake, absolutely still, you will miss it. ऑथर बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कोई भी मोमेंट पे ना कुछ हो सकता है, और अगर हम एब्सोल्युटली अवेक नहीं होंगे, एब्सोल्युटली स्टिल नहीं होंगे, तो फिर हम वो मिस कर देंगे। दिस इज द काइंड ऑफ वेटिंग जीसस टॉक्स अबाउट, और ये इसी वेटिंग के बारे में जीसस भी बात करते हैं। इन दैट स्टेट ऑल योर अटेंशन इज इन द नाउ। और इस स्टेट में क्या होता है कि हमारा सारा अटेंशन नाउ में होता है। देयर इज और daydreaming, thinking, remembering, anticipating, उसमें हमारे लिए डे ड्रीमिंग करने के लिए, सोचने के लिए, कुछ याद करने के लिए, कुछ एंटिसिपेट करने के लिए कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं बचता। देयर इज नो टेंशन इन इट, नो फियर, जस्ट अलर्ट प्रेजेंस। और इस वेटिंग में हमारी कोई टेंशन नहीं होती है, कोई फियर नहीं होती है, जस्ट हम अलर्ट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और प्रेजेंट विथ योर होल बीइंग, विथ एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। ऑथर बोल रहे हैं कि इस काइंड ऑफ मीटिंग में क्या होता है, हम प्रेजेंट रहते हैं पूरी अपनी बीइंग के साथ में जो हमारी सोल है उसके साथ हम प्रेजेंट रहते हैं। एवरी सेल ऑफ द बॉडी, सोल और बॉडी पूरी तरह हमारी प्रेजेंट रहती है। इन दैट स्टेट द यू that has a past and a future. The personality of your life is hardly there anymore. और इस स्टेट में क्या होता है, जो हम हैं जिसके पास एक पास्ट भी है और जिसका फ्यूचर भी है, जो पर्सनालिटी जो हम लाइक करते हैं वो हार्डली होती है। मतलब इस वेटिंग में हम पास्ट फ्यूचर ये सब से
नहीं खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, गेट नथिंग ऑफ वैल्यू इज लॉस्ट, और इस मीटिंग में कुछ हमारी वैल्यूएबल चीज लॉस्ट भी नहीं होती। यू आर स्टिल इसेंशियली योरसेल्फ, हम खुद में ही रहते हैं। In fact, you are more fully yourself than you ever were before, or rather, it is only now that you are truly yourself. और ये बोल रहे हैं कि इस बारे में हमें होता है कि हम थोड़ा खुद से हम ourselves, जो हम पहले भी नहीं थे, कभी इतने ज्यादा अलर्ट, इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं थे, और हम ट्रूली अपने लिए जो खुद है, हमारा ट्रू फॉर्म जो है, हम उसी में रहते हैं। तो ये नाउ में ही हो सकता है, प्रेजेंट मोमेंट में ही हो सकता है। बी लाइक अ सर्वेंट वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द मास्टर, सेज जीसस। तो जीसस कह रहे हैं कि एक सर्वेंट की तरह बनो जो कि अपने मास्टर के लिए वेट कर रहा है, जो कि मास्टर रिटर्न करेगा। सर्वेंट डज नॉट नो एट व्हाट आवर द मास्टर इज गोइंग टू कम, सो ही स्टेज अवेक, अलर्ट, पोइज्ड, स्टिल, लेस्ट ही मिस द मास्टर्स अराइवल। तब वो जो सर्वेंट रहता है ना, उसको पता भी नहीं रहता कि कब मास्टर आएंगे, इसीलिए वो फुल टाइम पर अवेक रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, कि नहीं तो फिर वो मास्टर का अराइवल मिस कर देंगे। एंड इन अनदर पैराबल जीसस स्पीक्स ऑफ द 5 careless unconscious women who do not have enough oil consciousness to keep their lamps burning, stay present into the mist, so miss the bridegroom the now, and don't get to the wedding feast enlightenment। और एक और पैराबल है जीसस का, जिसमें कि वो 5 careless women के बारे में बात करते हैं। जो वुमेन रहती है, उनके पास में इनफ ऑयल नहीं रहता है कि वो अपनी लैम्प को जला के रख सके, और वो लैम्प को जला के नहीं रख पाते हैं, इस वजह से जो ब्राइड ग्रूम का अराइवल होता है ना, वेडिंग फीस्ट को वो मिस कर देती है। तो यहाँ पे सब कुछ ये सिंबलाइज किया हुआ है कि जो 5 careless women है, ये हमारी अनकॉन्शियसनेस, और ऑयल अगर हम डालते रहेंगे ना, तो फिर वो हमारी कॉन्शियसनेस होगी। जब आप अपने लैम्प लैम्प यानी कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में ऑयल डालो, अपनी कॉन्शियसनेस को रखेंगे प्रेजेंट मोमेंट, तब ही हम ब्राइड ग्रूम के अराइवल को देख पाएंगे, यानी कि नाव को देख पाएंगे, और वेडिंग feast यानी एनलाइटनमेंट को हम रीच कर पाएंगे। दिस 5 stand in contrast with 5 wise women who have enough oil, stay conscious। तो ये जो 5 women है जो अनकॉन्शियस है, ये कॉन्ट्रास्ट करके अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा 5 और women रहती हैं जो कि वाइज रहती हैं, जो कि समझदार रहते हैं, और उनके पास में इनफ ऑयल रहता है, यानी कि उनके पास में कॉन्शियसनेस रहती है। Even the men who wrote the Gospels did not understand the meaning of these parables, so the first misinterpretations and distortions crept in as they were written down। ऑथर बता रहे हैं कि जिन्होंने गॉस्पेल में लिखा भी था ना, उन्होंने खुद ने ही पूरी तरह से पैराबल को अंडरस्टैंड नहीं किया था, इसलिए जो पहले मिसइंटरप्रिटेशन है वो उसको लिखने के टाइम पर ही हो गए, और सब्सिक्वेंट इरोनियस इंटरप्रिटेशंस जो अराइज हुए, उस वजह से जो रियल मीनिंग था वो कम्प्लीटली लॉस हो गया उसका। और ये जो पैराबल्स है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में नहीं है, बट अबाउट द एंड ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। एंड ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम, जो साइकोलॉजिकल टाइम टाइम हम डिस्कस करते हैं ना, 5वें महीना 6वें महीना, तो उसके एंड के बारे में वो बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। दे पॉइंट टू द ट्रांसेंडेंस ऑफ द इगोइक माइंड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग इन एन एंटायरली न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या पॉइंट करते हैं, जो इगोइक माइंड है वो कितनी ट्रांसेंडेंस जितनी है इगोइक माइंड की, उसके बारे में बात करते हैं, और जो हमारी एक इंटायरली न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में वो बात करते हैं। अभी जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ओनली द प्रेजेंट कैन फ्री यू ऑफ द पास्ट। जो प्रेजेंट ही है वही हमें फ्री कर सकता है अपने पास्ट से, ऑथर ने बोला है। उसके बारे में आप क्या फील करते हैं, व्हाट यू फील अबाउट दिस? डज द अनकॉन्शियस पास्ट इन यू प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग इन प्रेजेंट?
जो हमारे अंदर में अनकॉन्शियस पास्ट है वही हमें प्रिवेंट करता है प्रेजेंट में रहने से। डू यू फील द नीड टू इन्वेस्टिगेट और अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस पास्ट इन यू? जो हमारे अंदर में अनकॉन्शियस पास्ट है, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है? जैसे कि आज हमने डिस्कस करा ना कि उसको, ऑथर ने क्या बोला, उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, बस जो प्रेजेंट मोमेंट में ऑकर हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया। डू यू फील you need to understand about being present before experiencing it? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको प्रेजेंट बीइंग प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसको एक्सपीरियंस करने के पहले? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ स्टेट ऑफ इंटेंस प्रेजेंस वेयर यू आर फ्री ऑफ थॉट? क्या आपने एक्सपीरियंस करा है कि इंटेंस प्रेजेंस का स्टेट जबकि आप फ्री ऑफ थॉट थे, कोई थॉट ही नहीं है? आज हमने जो लिटिल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये चीज एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for the class. थैंक यू सिस्टर फॉर ज्वाइनिंग।